So, very good morning to one and all. As you would know, that we have amongst us All India Rank 2 CA Intermediate New Course, Nishita Bothra. So I think Nishita Bothra. Sorry, मैं नाम भी भूल जाता हूँ. आपको पता है कि कितनी इफेक्ट रहता है. So I think first let's start by applauding her. I think it's a big achievement. I think जब से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, भैया भी आप भी हैं मुझे, तो आई थिंक द फर्स्ट एवर टाइम इन नॉर्थ ईस्ट जो आया है. एंड कोइंसिडेंटली इस बार हमारे जो प्रेसिडेंट है सीए इंस्टीट्यूट के, वो भी गुवाहाटी से ही है. तो सीए डॉक्टर देवाशीष मित्रा इज बीन अ वंडरफुल मेंटर इन आवर जर्नी. मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखा था, और उन्हीं के टर्म में अगेन ऑल इंडिया रैंक 2 तो आना ये बहुत बड़ी बात है, राइट. तो फर्स्ट वी स्टार्ट बाय फेलिसिटेटिंग हर. तो मेरा आई ऑलवेज हैड दिस क्यूरियोसिटी. तो मैं पहले अपनी क्यूरियोसिटी से शुरू करता हूँ सवाल, इफ यू डोंट माइंड. ठीक है. तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि जो फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक्स आते 1, 2 और 3, उनको प्रेसिडेंट सर फोन करके बोलते हैं कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आया, ऑल इंडिया रैंक 2 आया. तो मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी था कि आपको उस समय एक्चुअली लगा कि प्रेसिडेंट या व्हेन ही कॉल्ड आपने कहा अरे मजाक मत करो यार, आज रिजल्ट आया. व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? मतलब पहला No, I believed him only. मैंने अपने फैमिली पर बिलीव नहीं किया. उन्होंने जब मुझसे बात किया तब मुझे लगा. Did you really feel कि डॉक्टर देवाशीष मित्रा सीए प्रेसिडेंट ने एक्चुअली आपको कॉल किया है? And yes, just as a curiosity I'm asking. Yeah, actually the secretary talked to me उनसे पहले, तो he told me कि देवाशीष sir wants to talk to you. And then when he started talking, I was like, yeah, this is not a scam. It's such a, he's only calling, no one is pranking with me. Okay, so this was the thing. और tell us something about your journey. आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि how is your journey been like? I mean, foundation से शुरू होके intermediate. I think I'll add a point here before she starts talking about her journey. अभी क्या है ना कि everyone is thinking she got an AIR too, but I remember talking to her almost like 2 years back. Before foundation. उसने foundation में नहीं लिखा था. I think that time the foundation got cancelled. Yeah. I think that's where her journey started for inter AIR. I think she'll be in a better position to talk about it मेरे हिसाब से. So आप अपने journey के बारे में. So class 12 I completed in the year 2019. So the immediate attempt that we could have applied for was November 19. But मैंने वो attempt में apply नहीं किया because I was shifting to a new place and I honestly hadn't decided if I wanted to pursue CA. Like I always had it in the back of the mind. But I thought that if Calcutta जाके मैं settle हो जाती हूँ, adjust हो जाती हूँ, let me see what other opportunities are there for me, and then I'll start with CA. So November 19 वाले attempt मैंने दिए नहीं. For May 20 I started preparing, and then May 20 attempt got cancelled because COVID आ गया. First it was deferring, so जैसे May 20 से it became June, then June से August, and then finally they cancelled. So obviously you guys know foundation is similar to 11 and 12. So till March or April, I was done with my syllabus, and then I had the 2-3 months extra. So I studied, and I was so bored because obviously COVID था, तो मैं बाहर भी कहीं नहीं जा पा रही थी. I was so bored, so I thought कि and series भी सब हो गए थे, सब मतलब एकदम bored हो गई. So I started. I had to talk with my teachers, and then I started with CA Inter Group 1 accounts. So July, August, and I think mid September तक मैंने Group 1 accounts almost complete कर लिया. सर से भी मैंने बात किया था इसके बारे में. And then I was done with accounts, and then 2-3 months again I studied for foundation, and then foundation के exams हुए. तो foundation December में हुआ. December month I took a break 15-20 days, and 4th January से I started with the other subjects of CA Inter. फिर till August end तक मेरे सारे classes हो गए थे CA Inter के. उसके बाद I was about to give the exams in December, but 15th November को was my sister's wedding. So I was pretty confident कि exam में मेरे syllabus भी हो गए थे. I had appeared for 2 mock tests also. So I thought कि
I'll give the exams, I'm prepared. Defer का कोई, I did not think about it. But when I returned after 15th November, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, so I was not able to write for 10-15 days. My hands were shivering and I was very weak and I थोड़ा health problems आ गए थे. So now I had to make a choice because I was confident that I'll pass. But the preparations I had, like the efforts I had put in for one and a half years, I did not want it to go to waste. So I decided that I'll defer my term. Then फिर 2 months, December and January, not उतना flow में पढ़ाई नहीं हुआ, बहुत minimal पढ़ाई हुआ था मेरा because I was not doing well and I procrastinated for a bit कि अब तो time है, सब हुआ है, mock test भी हो गए. But then February में I realized that नहीं, the reason I deferred my term was because I did not want to waste my efforts. So February से I started again. So all the social media platforms I deactivated my account and सब बंद, बाहर जाना बंद, बहुत कम, एकदम minimal. फिर वापस कैलकाटा कॉलेजेस खुल गई, तो वहां गई. फिर कॉलेज में 3-4 आवर्स वेस्ट नहीं होते थे, बट उतना एफिशिएंट भी नहीं होता था, बट फिर मैनेज करना पड़ा. एंड देन आई अपीयर्ड फॉर May 22 एग्जाम. सो एक बीच में एक तरफ से एक बार वो सोशल मीडिया वाली बात फिर से बोला है, वो एक दो सब नालायक पे बैठे हैं, एक बार सोशल मीडिया वाला बात फिर से रिपीट किया जाए. No, I deactivated my account because I could not control, because obviously मेरे पास बहुत सारे pictures भी थे उस टाइम मेरी बहन की शादी के, but I got so active on social media and सिर्फ social media ही चल रहा था, तो I thought अब तो it's high time now, I have to remove. So I made it a point that I'll not reactivate it till 30th, like till the end of the exams. And exams से निकलते ही I was traveling and I was like अब तो करो अब तो Instagram. So I think I can just take it up one thing. तो मतलब पर्सनली लाइक जो मैंने इसका पूरा अभी जर्नी सुना, ठीक है, तो जैसे कि व्हाट आई जस्ट वांट टू आस्क यू इज कि अभी आप जब ये पूरा फेज में पढ़ रहे हो, तो यू आर कहीं ना कहीं मेंटली थिंकिंग कि यार अपने को भी रैंक के लिए पढ़, बिकॉज यू आर टेलिंग कि अभी आप दिसंबर अटेम्प्ट लिखते तो आप पास तो हो जाते. अभी ये रैंकर प्रिपरेशन और एक नॉर्मल पास वाले में कुछ डिफरेंस होता है प्रिपरेशन में? और ये जब पेपर्स लिखते हो ये कितने लेवल पे डिफिकल्ट आता है इंटर का, आपने क्या मटेरियल्स यूज किया, अगर आप ये हाईलाइट कर सको ना तो सबको एक आइडिया लगता है कि सीए में कितने मटेरियल्स हमें यूज करने चाहिए, कैसे आपने क्या जर्नी में क्या मटेरियल्स यूज किए हैं, वो मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल होगा हर एक जन यहाँ जो फाउंडेशन या इंटर देगा अपने लाइफ. ओके, तो जब स्टार्टिंग में मेरे क्लासेस हुए थे टिल जुलाई अगस्त, तब रैंक का आई डिड नॉट थिंक. आई वाज जस्ट लाइक क्लासेस कंप्लीट करो एंड संग में आई यूज्ड टू सेल्फ स्टडी फॉर 3-4 आवर्स. तो स्टार्टिंग में मैंने रैंक के बारे में सोचा नहीं, बट देन आई अपीयर्ड फॉर मॉक टेस्ट. तो मेरे को लगा कि ओके, या मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट 100% कंप्लीटेड है मेरा, तो आई कैन गेट अ रैंक. बट नवंबर के बाद एक्चुअली लास्ट 15-20 डेज इफ आई डोंट राइट इट मेरे हाथ से, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एक्चुअली, कि मेरे को लगा कि नो, मैं पूरी 1 ईयर की मेहनत वेस्ट होने वाली है. So I was already 1 year late in comparison to my batchmates. So I thought कि it does not matter. मैं 6 महीना और defer करूँगी. I'll wait for it. And then I appeared for the exams. And मतलब exam result से पहले तक I was regretting कि 6 months waste हो गए. And especially December के जब exams है, जब मैं शाम को paper देखती थी, and I used to give the papers संग में. तो मतलब जैसे 2 to 5 हुआ, तो the maximum next day तक I used to write the answers कि मेरे को आता था कि नहीं. And then I realized कि यार हो जाता है, तो the regret was बहुत ज्यादा. तो दिसंबर जनवरी वो रिग्रेट में ही निकल गया था. एंड उसके बाद आई थॉट कि नहीं, अब नहीं होगा. एंड रिजल्ट से पहले तक भी रिग्रेट था मेरे को अभी कि यार 6 महीने वेस्ट हो गए, अभी तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती, ये हो जाती. बट जब रिजल्ट आए उस दिन आई थिंक इट वाज वर्थ इट. अच्छा, एक चीज आपने जो हाईलाइट करी, मॉक टेस्ट आप जो बोले थे लगाना, ये कितना जरूरी होता है, ये अभी आपने हाईलाइट किया, थोड़ा और एम्फेसिस करें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, वो तो रेडीमेड हम मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे चलता रहता है, बट क्या है बहुत कैजुअली लिया जाता है उस मॉक टेस्ट को, तो वो कितना जरूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना? मॉक टेस्ट मतलब बहुत, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट कि you guys know everything, okay, you have studied so much कि तुम लोग 9 months 10 months 11 months पढ़ रहे हो, but if you don't write it 3 hours बैठ के to tackle the question paper, it's something different. सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, you have to be patient, and उसका भी एक अलग, you know, okay, पढ़ाई is important, but you have to have a certain mental thinking, mental level, how to tackle a difficult question, because क्योंकि इंटर पेपर्स all 100% मतलब 50-60% ऐसा लगता है कि हाँ आता है, एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं. तो हाउ टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ पेपर. सो इफ यू ट्राई इट इन द एग्जाम फर्स्ट, तो फिर वापस एग्जाम देने होंगे, तो दैट विल बी योर फर्स्ट मॉक टेस्ट इफ यू डोंट गिव पहले मॉक टेस्ट.
So that was my thinking कि मेरे को पहले देना है, because I did not want to go and try exam center में बैठ के. So I think everyone should appear for mock test. वो 3 hours 15 minutes reading time एकदम seriously sincerely just think you are sitting ICI के उसमें एग्जाम सेंटर में, स्टडी फॉर इट 1.5 डे में या जितना भी लीव मिलता है, एंड फिर उसको अपियर करो एंड देन सी व्हाट क्या हो रहा है, कैसे 15 मिनट्स का कैसे यूज करना है, बिकॉज उधर जाके सोचोगे 15 मिनट्स को ऐसे यूज करना है तो नहीं होगा. वो 15 मिनट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो पेपर कंप्लीट नहीं होते और होते भी तो रिविजन का टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ छूटता ही है. तो पहले बैठ के करोगे तो उसमें यू विल नो कि हाँ आई हैव टू अप्रोच द पेपर इन अ सर्टेन मैनर. अच्छा, 2-3 सवाल जो नॉर्मली हमेशा हर बैच के स्टूडेंट के रहते हैं, तो मैं इनके बिहाफ से पूछ लेता हूँ आपको. सबसे पहला तो ये होता है कि ना, जब भी कोई क्वेश्चन हमको देखा हुआ नहीं मिलता एग्जाम में कि स्टडी मटेरियल से नहीं आया, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि नए नए तरह के पैटर्न के क्वेश्चन, स्पेशली एमसीक्यू, जो इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो जो नया पैटर्न का क्वेश्चन आता है जो कभी आपने देखा नहीं है और फर्स्ट टाइम आप पेपर पे देख रहे हो, तो उसमें आपका अप्रोच कैसा रहता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, वो देखते हैं, इनका मन में आता है कि पता नहीं है तो देखा नहीं है, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाता है उसमें. तो आप जब एग्जाम में गए और कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आया या इंटीग्रेटेड एमसीक्यू आपको ऐसा नजर आया जो आपने एकदम भी कभी नहीं देखा, उसको एकदम फ्रेश था, तो फिर आपका अप्रोच कैसा रहता था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो आई लेफ्ट द क्वेश्चन कि मेरे को ये एंड में करना है. स्टार्टिंग में तो मैंने आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट क्वेश्चन, बस मैंने पहले तो चॉइस होता है, तो इफ आई कैन रिमूव द क्वेश्चन आई यूज्ड टू डू दैट. ठीक है, उसके बाद इफ आई थॉट कि मेरे को करना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो आई लास्ट में मैं करूंगी. अभी इतना पहले आते हैं एंड 100% कॉन्फिडेंस, जितना भी मैक्सिमम मेरे को आता है मैं पहले वो करूंगी. एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडी तो सारे एकदम भी देखे हुए नहीं आते. देयर इज नो कॉमन, मतलब जो आईसीएस के जो के जो है ना एमसीक्यू बुकलेट, तो इफ यू गाइस सॉल्व दैट, तो जब मतलब पहले 5-6 क्वेश्चन में यू सी कि हाउ टू क्रैक द केस स्टडी, हाउ टू गो थ्रू इट, बट इफ यू प्रैक्टिस पहले से जो 30-40 एमसीक्यू, वेरी नाइस एमसीक्यू, तो अगर वो सब करोगे तो यू एग्जाम हॉल में भी बैठ के यू नो हाउ टू गो अबाउट इट. तो ऐसे मैं करती थी. आई यूज्ड टू ब्रेक द क्वेश्चन कि हाँ, बिकॉज द एंटायर क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, सम ऑफ द पॉइंट्स आर सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स और सम ऑफ द पॉइंट्स आर डिफिकल्ट, तो बस उसको अंडरलाइन करके रख देती थी. और बाकी क्वेश्चन बिकॉज वी हैव स्टेप मार्किंग हियर, तो छोड़ना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं, करना पूरा 100 मार्क्स का पेपर है. अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं आते तो आई यूज्ड टू रीड इट कि पीछे में लास्ट में करूंगी मैं, अगर टाइम मिला तो, बिकॉज कोई अगर इट्स ऑब्वियस कि अगर कोई नया सा क्वेश्चन आता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम उसको कैसे करना है. तो लास्ट में आई थॉट कि अगर टाइम बचा तो मैं उसका दिमाग लगाऊंगी, नहीं बचा तो आई अपियर हाउ मच आई नो, जितने एडजस्टमेंट्स मेरे को आते हैं आई डू दैट. एग्जैक्टली, मतलब मैं भी इनको यही सजेस्ट करता था कि आप क्वेश्चन को जब कर रहे हो तो जो पॉइंट में आपको डिफिकल्टी आती है उसे इग्नोर कर दो, ट्रीट एज इफ कि क्वेश्चन में है ही नहीं वो पॉइंट, और फिर सॉल्व करो, और उसके बाद आप लास्ट में जो बेस्ट पॉसिबल आपको कॉन्सेप्चुअली आता है वो ये कर दो. आई थिंक शी आल्सो एग्रीड विद द सेम पॉइंट. और एक दो सवाल और मैं ले लूं, उसके बाद आप लोगों का सवाल मैं ले लेता हूँ. आपको कुछ रिवीजन प्लान के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था मेरा कि ये 1.5 दिन पहले जो एग्जाम का रहता है, ये 1.5 दिन पहले, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि आज एग्जाम दे के आया अकाउंट्स का, परसों लॉ का है, तो आज तो वो चिल में निकल जाते हैं कि वो अकाउंट्स खत्म हुआ है, आज तो उस गम में निकल जाते हैं कि चलो एग्जाम अकाउंट कल से फिर शुरू करेंगे पढ़ाई, तो वो कल सुबह 11 बज जाता है कि वो बिफोर लॉ का प्रिपरेशन शुरू करे, वो 11-12 बजा देते हैं उसको करने से पहले. तो वो 1.5 दिन पहले आपका जो स्ट्रेटेजी रहता था एग्जाम से पहले, एक बार वो भी आप शेयर करें अपना. तो ये 1.5 days का जो स्ट्रेटेजी था, ये मैंने क्या प्लान किया था कि वहां से पहले मैं मार्च में मैंने डिसाइड किया था कि I'll start revising in a manner कि पहले मैं एक सब्जेक्ट को I picked up and I made it a point कि 4 days में मेरे को पूरा सब्जेक्ट entirely मेरे को रिवाइज करना है. तो जब फर्स्ट मंथ में ये हुआ, देन आई डिसाइडेड कि मेरे को इसको डिक्रीज करके 2.5 days में रिवाइज करना है एंटायर सब्जेक्ट. तो जब 4 days में रिवीजन करती थी तो मैं उसे बहुत नैरो डाउन कर देती कि सेकंड डिवीजन में मेरे को क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, बिकॉज पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक पार्ट रहता था कि हाँ दिस आई हैव टू रिमेम्बर, कि ये लिमिट है, ये पेनल्टी है, या ये मेरे को याद करना है बस. तो आई यूज्ड टू नैरो डाउन इट. क्वेश्चंस भी मैं ऐसे नैरो डाउन करती. फर्स्ट डिवीजन में जितने मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चन किए उसको मैं कम कर दी, उससे मैं सेलेक्ट कर दी कि हाँ विच क्वेश्चन इज कवरिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इतने मतलब हर चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन करते करते सेकंड डिवीजन में इट बिकेम 2-3 रिवीजन. सो पहले 4 days का रिवीजन था एंटायर सब्जेक्ट, फिर 2.5 days का रिवीजन था, एंड देन 1.5 days का रिवीजन हुआ. मतलब आपने एंटायरली सिमुलेट किया पहले हाँ, बिफोर गेटिंग द एग्जाम एग्जैक्ट
उसके बाद आपने पेपर अपेयर किया? या जैसे 4 days के रिवीजन के बाद आई यूज्ड टू अपीयर फॉर अ मॉक टेस्ट। तो मैंने ICI के मॉक टेस्ट दिए थे बिकॉज उस टाइम पे नया सीरीज निकला था। तो जैसे कोई मॉक टेस्ट होते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं, तो ICI में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस थे, तो मैं वो करती थी पहले कि हाँ इफ आई हैव टू अपीयर फॉर दिस पेपर टुडे, आई हैव गॉट 4 days ऑफ रिवीजन, तो अब मैं बैठ के यहाँ पे क्या करूंगी, तो वही 15 days एंड माय स्लॉट वाज आल्सो 2 to 5 ओनली, जैसे ICI के होते हैं। तो हाउ टू अपीयर फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको लास्ट में मार्क करना, हाउ टू अंडरलाइन द पॉइंट्स, सब मैंने पहले से ही करके रखा था। सो आई अपीयर्ड फॉर 2 entire mock tests which ICI releases, except for audit and law मैं एक गो में नहीं बैठी थी 3 hours, but I made it a point that I have to write the answers. अच्छा, कई बच्चों का एक प्रॉब्लम है कि एग्जाम के पहले बहुत कुछ छूट जाता है रिवीजन, ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हुआ होगा? हाँ, कि आपने पहले सिमुलेट कर लिया या आपका भी छूटा? कुछ मिस आउट हो जाना कुछ छूटा था, बट छूटा वही था जो था कि हाँ अगर आया तो एग्जाम में इट विल क्लिक, मतलब मेरे को याद आ जाएगा। ऐसे कोई एकदम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं छूटा था, जो इजी सी कॉन्सेप्ट है वो मैं पीछे के लिए या तो लास्ट डे रिवीजन करूंगी। जैसे लॉ में हमारे वो ऑडिट वाली चैप्टर है, तो ऑडिट में भी वही चैप्टर है, तो वो तो था कि लास्ट में अगर मेरे को टाइम मिला तो आई रिवाइज इट ऑन दैट डे ओनली। अगर कुछ चैप्टर को हम ऐसा कर ले कि पहले बहुत स्ट्रांग है तो वो रिवीजन नहीं होता चल जाएगा। हाँ, रिवीजन अगर पहले अच्छे से हुए एंड वी आर कॉन्फिडेंट विद दैट चैप्टर तो फिर एक बार जस्ट फटाफट गो थ्रू कर लो कि हाँ अगर 15-20 मिनट्स में बस एक बार देख सकते हैं, या फिर पॉइंटर्स। एंड फॉर मेनी चैप्टर्स, फॉर मेनी सब्जेक्ट्स एंड मेनी चैप्टर्स, व्हाट आई डिड वाज आई मेड समरी नोट्स। जैसे टैक्स के लिए आई हैड मेड समरी नोट्स फॉर ईच हेड, फॉर TDS, फॉर डिडक्शन, फॉर ऑल द चैप्टर्स आई हैड मेड समरी नोट्स। आई हैड वन copy of summary notes, and उससे पहले भी मैंने when I was about to give the exam in December, I made summary notes at that time also. So provisions तो सारे ऐसे लगते कि रट्टा ही हो गया था। And also ICI के अगर someone is not able to make the summary notes, ICI के हर chapter के पीछे especially for tax बहुत comprehensive, बहुत अच्छा summary notes दिया है। If you guys refer that, पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाएगा। अभी वही समरी नोट्स मैंने भी सेम इनको टैक्स के लिए बोला था कि आप एक छोटा सा कॉपी वगैरह मेंटेन करो उसमें सारा। तो अभी नालायक कम थोड़ी है, कहते टैक्स में तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसमें तो थोड़ा सा कम करने से भी हो जाएगा। तो तुमको बता, समझ रहे हो तुम लोग नालायक हो। अभी वापस बुलाऊंगा ना तब बात करेंगे। आई थिंक मेरे को एक लास्ट चीज है, ठीक है, मतलब अभी इससे बहुत एकेडमिक्स पूछा है, पर मेरे को हमेशा से लगता है कि वो जो जॉय होता है ना, वो जर्नी का नहीं होता है, वो उसका आउटकम का होता है। एग्जैक्टली। अभी आई वांट टू नो व्हाट्स योर लाइफ बिफोर AIR, आफ्टर AIR, क्योंकि मेरे को लगता है जब वो स्टूडेंट एक मोटिवेट होता है ना कि ये रिजल्ट पे हमको ये मिलेगा, तो वो एफर्ट अपने आप आने लग जाते हैं। मेरे को लगता है आई वांट टू नो दैट फीलिंग। अभी हम लोग तो फीलिंग गए नहीं है, तो व्हाट्स द लाइफ बिफोर AIR, आफ्टर AIR, ऑनेस्टली, द वेरी ऑनेस्ट आंसर। Obviously attention बहुत मिल रहा है। I'm getting many calls from various CAs, from students also. Students have also been calling me. LinkedIn पे इतना request messages, Instagram तो पूरा Instagram पे तो ऐसे लोग घूमते रहते हैं। तो and also when I meet people, so some of them are able to recognize me, तो वो आके मेरे को approach करते हैं। So it's very happy feeling, and you know ऐसे लगता है कि yeah, the 1 year which I struggled, like 1.5 year, because all my friends were, you know, enjoying partying, which I was also doing, but not to that level. तो ऐसा लग रहा था कि yeah, it is worth it, like कि सब अभी the process, like अभी जो 1 year 6 months, जब भी November exam, May 23 exam, just enjoy this, सब भूल जाओ। If you start enjoying the study, कुछ और याद आएगा ही नहीं। तो मैंने तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि हाँ इतना पढ़ रहे हैं यार, सब घूम रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, बट बिकॉज आई न्यू दैट आई एम परस्यूइंग CA and they are not, so I have to study. I can't manage both. या तो I can party or else I can study. I can't do both. तो short breaks you can take days, मतलब if you have a particular target, उसके बाद okay you go out for 3-4 hours, 2-3 hours ऐसे करके, but ऐसे नहीं कि एक हो गया तो अब एक हफ्ता का मैं ब्रेक लूंगी, इतना ये तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी 9-10 मंथ्स ही है बस, उसके बाद सी मतलब लाइफ इतनी मस्त हो जाएगी। बस अभी 9-10 मंथ्स कर लो, उसके बाद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। नो वन इज, यू नो, नो वन विल बॉदर यू। अभी एक लास्ट चीज, अभी इंटर खत्म हो गया, अभी नाउ इज आर्टिकलचर, ठीक है, अभी क्या सोचा आपने, लाइक यू वांट टू गो टू अ बिग 4 मिड साइज फर्म, क्या दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि व्हाट्स द प्लान, व्हिच सिटी डू यू वांट टू गो, एंड अभी एकेडमिकली भी और कुछ करने का मन है या अभी CA फाइनल उसके बाद सोचेंगे आगे, व्हाट्स द? नहीं, अभी
I want to complete my CA and then I want to go for MBA. But CA के साथ साथ I'm not planning to do any other course. Articleship, Big Four, most probably Big Four, but एक बार मैं mid-size firms भी देखूंगी because I am planning to go for industrial training and Big Four में some of the partners don't allow, so yes. I'll have to talk to them. अच्छा, we can open it for the students also. आपको किसी को कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है, इंस्टा पे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, she won't attend. अभी she is a celebrity at this point of time for next 7 days. At this point, especially इंटर वाला पूछो ना, क्या कुछ पूछना है तो जो पूछेगा उसको रैंक लाना. So these guys know me, they were my juniors. हाँ, सीखो, सीनियर से कुछ सीखो, हाई मत करो उधर से. So ask some questions. हाँ. अभी पूछना है तो पूछो फटाफट, नहीं तो we'll wrap it up. We won't waste the time right now. Time is money, हाँ. जल्दी, if you have anything to ask quickly. शर्मा मत. फाउंडेशन वाले लोग भी अभी उम्मीद जिंदगी में कुछ है तो बताओ. फाउंडेशन वालों को तो एक ही मेहनत है, 12th हो गया से लेके फाउंडेशन देना है. वो जोन में आने में कितना टाइम लगता है? मेरे को ही लगा था टाइम, मैंने डेफर फर्स्ट अटेम्प्ट पे दिया. अभी मत बोलो यार, इन लोग को लेकर हम लोग भी डेफर करेंगे. If you have decided कि आप इमीडिएट अटेम्प्ट देना है तो डोंट वेस्ट द टाइम. मैंने तो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो वो नवंबर से मार्च मई तक मेरा पूरा फाउंडेशन ही चला था. बट अभी इमीडिएट 12 देकर इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अटेम्प्ट अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स, डोंट वेस्ट टाइम. It's similar to class 12 but scoring is not similar. चेकिंग एक अलग ही लेवल पे होते सीए के. सो आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग आफ्टर क्लास 12 कि इतने मार्क्स आएंगे, बट उतने आए नहीं थे मेरे. देन आई रियलाइज कि ये 12 या 10 के एग्जाम्स नहीं है, ये इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. तो फोकस बिकॉज ऑलमोस्ट अकाउंट्स एंड ऑल आर सिमिलर ओनली. तो यू हैव द कांसेप्ट्स बट फोकस ऑन हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स एंड हाउ टू राइट द आंसर्स. एक पॉइंट मेरे को स्ट्राइक किया, क्योंकि मैं इतने सारे 11 12 को भी पढ़ाता हूँ अपने लेवल पे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब 12 कर रहे हो तो यू माइट नो कि आपको सीए करने का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सीए अभी गुवाहाटी में क्या मेंटालिटी है, अभी आपको सीए करने का तो कॉलेज इज इररिलेवेंट. व्हाट डू यू फील, डज कॉलेज आल्सो प्लेज अ रोल इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्योंकि अभी एकेडमिक एक चीज है पर रियल कॉर्पोरेट आल्सो इंक्लूड सम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो एक कॉलेज, एक फ्रेंड्स ग्रुप जिसके सराउंडिंग में आप रहते हैं. क्या टेक है आपका इसके बारे में? एंड आई थिंक लास्ट नहीं, सीए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि अगर सीए कर रहे हैं तो कॉलेज को एक बैक सीट में रखना, बट आई डोंट थिंक ये करना चाहिए. बिकॉज सीए इज लाइक पूरा एकेडमिकली एटलीस्ट टिल इंटर, टिल यू एक्सपीरियंस, यू गो फॉर वर्क इन आर्टिकलशिप. टिल इंटर इट्स कंप्लीटली बैठ के पढ़ना और प्रैक्टिकली व्हाट हाउ यू स्पीक एंड व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, हाउ टू talk to seniors and how to put your points forward. When you go to college, you have seminars, you have to present something, you meet people, you socialize, you network. So the networking plays a very important role. So if you don't have the marks but you have the network, it's very much possible that you may get what you want to get if you don't have the marks. So networking is very important. Go to college, enjoy, because 3 साल ही है कॉलेज, उसके बाद तो you have to या तो काम या तो फर्दर पढ़ाई. तो कॉलेज जाना चाहिए. ओके, इफ यू डोंट वांट टू गो कि सीए है, बहुत पढ़ाई है, इंटर में बहुत पढ़ाई है, तो मे बी वीक में 1-2 बार दैट पीपल नो यू देयर कि हाँ, अगर इफ यू वांट समथिंग, बिकॉज कुछ भी काम निकलवाना हो तो यू हैव टू नो पीपल. तो उसके लिए इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस आफ्टर इंटरमीडिएट व्हेन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग, स्पेशली ओटी, यू रियलाइज कि नेटवर्किंग इज सो मच इम्पोर्टेंट. कि जब वेरियस सीएस आके आपकी ट्रेनिंग लेते हैं, आपसे बात करते हैं, एंड देन पीपल कम अप एंड स्पीक, बिकॉज 15 days इज पूरा पब्लिक स्पीकिंग. So then you'll shiver. Yeah, if you don't or if you don't have the experience पहले, then you think कि people are doing so much better than me, कि मेरे से नहीं होगा. So अभी से कॉलेज को भी एंजॉय करो. I think वो अच्छा रहेगा. Obviously लास्ट के 2-3 months में don't go to college, मत जाना, but starting में if you can go for 1-2 days, क्योंकि आई नो कि स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि आप लोग इतना करते भी होगे. यू गो टू पार्टीज, राइट? तो कॉलेज भी चला जाओ, 2-3 घंटे जाके आ जाओ. I think if someone has to ask, it's again one. से हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गया. लास्ट 1.5 months हम लोग का. How did you tackle all your 8 subjects एक बार में? I'll just repeat these questions for the ones who are watching online. So basically, Mukund is asking कि since for the November attempt we are entering that last month phase. So how do you manage all 8 subjects? क्योंकि आपका सब धीरे-धीरे कोचिंग वगैरह सब coaching is 1 month खत्म, 1 महीना बचा हुआ है. 8 सब्जेक्ट का कोचिंग खत्म हो जाएगा, right?
सो उसके बाद वो 8 सब्जेक्ट का जब प्रेशर एक साथ आ जाता है तो फिर वो सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 तारीख से तो एग्जाम ही शुरू हुए इस बार. तो हाउ डिड यू कोप अप एट दैट पॉइंट उस समय? Okay, so starting से I made it a point कि मेरे को classes, I did not go for like पूरे दिन मेरे को क्लासेस करना है. मेरे 3 क्लासेस होते थे डे के, उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी टाइम होता था. तो ऑलमोस्ट वो क्लासेस के साथ साथ मेरा ऑलमोस्ट रिविजन हो जाता था. उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट ग्रुप का मॉक टेस्ट था. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ग्रुप 2 के क्लासेस कुछ कुछ चल रहे थे, बट आई वाज अपियरिंग फॉर द मॉक टेस्ट आल्सो. तो बाय द टाइम ग्रुप 2 के क्लासेस कंप्लीट हुए, मैंने मॉक 1 दे चुका था ग्रुप 1 का. उसके बाद आफ्टर 20-30 डेज आई हैड ग्रुप 2 का मॉक टेस्ट. तो फिर सिर्फ ग्रुप 2 पे मेरा फोकस था. तो एक एक मॉक टेस्ट दोनों के हो गए. उसके बाद लाइक आई सेड वो 4 डे 3 डे 2 डे मतलब जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज. पूरा 4 दिन एक ही सब्जेक्ट को दे दो. एंड व्हाइल यू आर डूइंग द क्लासेस आल्सो यू कैन नैरो डाउन व्हाट यू हैव टू स्टडी. क्योंकि 4 दिन में 4 महीने के क्लासेस को वापस से पढ़ना इज नॉट पॉसिबल ओनली. तो फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स व्हाइल यू आर डूइंग द क्लासेस मार्क कर लो कि यार this is the most important question, या इस क्वेश्चन में सब कवर्ड है, इस क्वेश्चन में is a tricky point, or not the entire question, at least underline the adjustment which you have to see. And साथ में what I did was chapter after the end of every chapter what I did, I immediately went through the RTP MTP past year question paper. So last में वो मेरे पास pile up नहीं हुए थे कि मेरे को सारे सब कुछ करना पड़ा. When you do it starting से तो last में इतना pressure नहीं बनेगा. तो मतलब in short यही अभी हम लोग भी यही कर रहे हैं कि हम लोग ग्रुप 1 का इनसे मॉक ले रहे हैं. अभी हम लोग अकाउंट्स का जो आपस टेस्ट है, तो मैं इनको यही समझा रहा था कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अभी ग्रुप 1 का मॉक दो ताकि लास्ट 2 मंथ्स आपको ग्रुप 2 के लिए मिले. और इम्पोर्टेंटली हमारे यहाँ भी क्लासेस तो हम लिमिटेड रखते हैं दिन के आवर्स में, बट इनका क्या होता है घर में जाके थोड़ा सा, तो आप अपने पॉइंट बोला तो एक बार फिर से वो पॉइंट पे कितने घंटे क्लासेस करते थे, क्लासेस करने के बाद रात को 7 बजे तक क्लासेस एक्चुअली जरूरत है क्या? जरूरत जो इन्हें लगता है यहाँ पे गुवाहाटी में रहने वाले लोगों को कि सुबह 7 से रात को 7 क्लास करेंगे ना तो ही फाउंडेशन इंटर होगा. अच्छा, और उसके बाद घर पे पढ़ना कितना जरूरी, सेल्फ स्टडी कितना जरूरी होता है? तो मेरे क्लासेस, आई टॉक अबाउट माय रूटीन. माय क्लासेस आई डिड द क्लासेस फ्रॉम 5 to 5. तो मेरे 3 सब्जेक्ट होते थे. बीच में 1.5 hour का मॉर्निंग टाइम मेरे को मिलता था आफ्टर द फर्स्ट क्लास फॉर माय सेल्फ स्टडी. फॉर माय दैट आल्सो आई गॉट. तो and then after 5 I used to take a break of maybe 1 hour, and then for 2-3 hours I made it a point कि मेरे को रोज सेल्फ स्टडी करना है, because I knew कि classes will be till August September only. उसके बाद I have to study on my own only. So if you do it with the classes, the concept is is fresh in your mind. So if you do it same day पे, so it's easier to retain the concept. So अगर if you do संग में like morning class, and if you do it in the evening, so maybe half hour 1 hour लगेगा. But if you do it after 1 month of classes, पहले सारे classes complete किए, and then 1-2 months, the same thing which would have taken you 1 hour will take you 3 hours, because you won't remember anything. Concept you remember, but how to write, and especially for theory subjects, so it's very difficult कि इतना सब कुछ होता है. Like if you see audit EISSM, उसको देख के ही ऐसा लगता है कि नहीं होगा. The ICI material also if you see, so if you do it with the classes, like 2 hours classes, make it a point, a half an hour at least you go through what you have studied, so you can summarize it in your brain at least कि क्या पढ़ा था. So next day you maybe after one month when you fully concentrate on self study, it would be easier for you. Exactly. Very important point of relating to self study. Audit में भी बोला, सुन लो तुम लोग, समझना ना. खाली audit में लोग अब छोड़ो क्या बोलेंगे. Anyone else has a Anybody question? else? Let's make it quick now. Let's not. Utsav, please. What? Yes, I'll just Your motivation factor. Motivation factor that in your journey throughout 1.5 years. Not something particular. Like I have always been student, so I have pretty much got good grades in class 12 also, 10, 12 also. So everyone around me was expecting that I'll do good. So they were believing in me. So when the foundation exams, I got the results. I was not satisfied, but they were satisfied. Ki हाँ, inter में professionally, it's on a competitive level, it's very nice. So these guys believed in me so much, and also there were many outside, like you can refer to some videos, like some teachers, quick stories, you can listen to it. But what I faced कि ये temporary motivation था for me. Okay, so maybe उस दिन देखो तो 10-15 days लगता था, फिर वापस से
you know, we feel down. फिर वापस से एक वीडियो देखो. तो what ये मैं करती थी, but not on a regular basis. What motivated me was कि I have to give my 100%, because you know, if you don't give it, you know you are capable of, and if you don't give it, and results के दिन you regret the fact कि अगर मैं कर लेती तो I would have gotten it. The regret is so scary, and if you really think about it, you think कि no, I'll study, I have to give it, because I don't want the regret in my life, because this is the only opportunity I'm getting. I'm not getting it again. And also when I see that I've been blessed कि I have the opportunity to take the best classes, or to you know, buy whatever mock test series I want. So many people don't have the opportunity. Yeah, so I want to make the best use of it I can. So that was motivating me. I have seen so like कोई ऐसे पढ़ते हैं, कोई ऐसे like during the classes we got to know, and I thought कि मेरे को तो, you know, in a AC room I am sitting with a laptop, with a brand new laptop, the best facilities I am getting. So why am I not making the, you know, most optimum use of it? Why am I giving it away when someone who does not have those opportunities is doing so good? So why am I not? So that motivated me a lot. मतलब इसके लिए तो यार मतलब Yeah, ये तो it's a very good point. Feeling of gratitude is very important. Very good point made by. मतलब AIR 2, humble, down to earth, Exactly. all good qualities that you can think about. Any other question? Yes, आपने जैसे बोला कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है जो डिमांड लाइक अटेंडेंस, एंड आपने मतलब वो कॉलेज को वो वाला पार्ट इन इन स्टडीज, लाइक हाउ डिड यू नो go with them, या which college like did you study जिसमें था प्रॉब्लम? It's just I don't The think, video part we won't be able to it's just a thing that how did you manage your college and your basically your inter preparation. I think she was lucky enough इस part पे थोड़ा सा गया. okay. COVID. So I was in St. Xavier's College, Kolkata. So attendance is extremely important there. So 75% तो minimum I have to go. And also उनका क्या था कि 1 week में एक सब्जेक्ट की एक ही क्लास होती थी उनकी. तो if I miss one class, 25% attendance वैसे ही चला जाता था. तो I had to go to college. तो फाउंडेशन इंटर में I was lucky कि मेरे कोविड हो गया, तो I was sitting at my home and I had online classes. But फाउंडेशन में what my routine was, from 9 AM to 3:30 I had classes. 2 सब्जेक्ट्स चलती थी, and from 4 to 8:30 I had college. तो मतलब 9 to 9:15 पूरा दिन मैं बाहर ही रहती थी. तो स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ना है, फाउंडेशन है, ऐसा चला था फॉर 10 days. बट देन आई रियलाइज कि इट्स पाइलिंग अप, बिकॉज लॉ वाज एक्सट्रीमली न्यू. अकाउंट्स में भी यू नो यू हैव टू, देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर. इतना इजी नहीं है क्लास 12 जितना. तो व्हाट आई डिड कि आई हैड टू टेक आउट टाइम फॉर मी. सो after coming from the college I was so exhausted that immediately like 10:30 maximum I went to sleep, and then subah 6 o'clock I used to wake up, and at least 2 hours so I had to study. So if you do it while the classes, 2 hours तुम निकाल लो, तो बाद में with the college, with the classes you don't have to manage. Starting में if you take small steps, तो एक बड़ा step class में नहीं लेना पड़ेगा. तो you know throughout the classes you do 1-2 घंटा निकाल लो. अगर कोई दिन नहीं होते तो okay, don't feel demotivated, but next day you try to manage it, try to you know cover up what was left. So I used to do it in that. I think our entire team would like to wish her all the best for your future. Thank you so much. And have a great time in your architecture. Once again, we'll end by applauding her. I think again, a lifetime achievement. We'll end. Yeah. और किसी मुझसे पूछा. Thank you so much. Thank you guys. All the best. Thank you so much. All the best for Inter Foundation.